friends, welcome back to my channel. I am Akshay Budulwar and you're watching Physics Corner. So from this video we are going to discuss all about complex analysis. In this video we are going to discuss some introduction to the complex analysis. तो देखिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है x square plus 1 equals to 0. अब मुझे ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है. तो मैंने क्या किया, x square equals to -1. The procedure as usual we all followed. Okay. अब देखिए x equals to root of -1 लिख सकते हैं. तो अब देखिए ये root of -1 it's not a real numbers. That's why root of -1 is nothing but the complex number. यानी कि उस complex number को कैसे डिनोट किया, I equals to root of -1. Then squaring on both side we got I square equals to -1 which is a complex number. यानी कि जहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ रियल नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए वहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट हो गया. अब देखिए अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज z equals to x plus iy where x is a real part and y is an imaginary part. फॉर एग्जांपल देख लीजिए z equals to 4 plus I times 3. Okay, this is x plus iy where x is a real part and y is an imaginary part, but x and y belongs to the real number. यहाँ पे 4 और 3 belongs to क्या है, real number. ओके देखिए ये पार्ट रियल है, ये पार्ट इमेजिनरी है, बट उसमें जो x और y है वो belongs to क्या है, रियल नंबर. देखिए अब रिप्रेजेंटेशन हम प्लेन पर कैसे कर सकते हैं. तो देखिए x और y प्लेन है and this x belongs to the real and this y belongs to the imaginary. अब देखिए यहाँ पे z equals to x plus iy, this is the complex number. तो ये x हो गया, ये इतना और इतना ये y हो गया. इसको हम कह सकते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ z. तो डिटेल में अपन कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ z नीचे देखने वाले हैं. तो देखिए व्हाट इज अ कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ z. तो देखिए अब ये जो x और y का प्लेन है दैट प्लेन इज नथिंग बट द आर्गान प्लेन. ओके अब देखिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to x plus iy where x is a real and y is a imaginary but x and y are the real numbers. अब देखिए अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड रहेगा ना. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैग्नीट्यूड ऐसे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ z and that magnitude of z is nothing but under root of x square plus y square. This is the magnitude of z. आए ध्यान में. अब देखिए ये थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस. तो देखिए आपको पता ही है tan थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो इस थीटा के लिए अपोजिट हो गया y, एडजेसेंट हो गया x, देयरफॉर y by x, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y by x and is called argument. What is called the argument? Okay, तो देखिए यहाँ पे आप ये याद रखना है हाउ टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये आर्गुमेंट. ओके आर्गुमेंट क्या देता है, कितने एंगल से वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिएंट हुआ है उस प्लेन में, आर्गान प्लेन. ओके अब देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. अब देखिए ये हो गया x, ये हो गया y और यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है ओके एट r डिस्टेंस पर. अब देखिए इस डायग्राम से sin थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, अपोजिट अपॉन hypotenuse. तो y by r, therefore y equals to r sin theta, and cos theta equals to adjacent upon hypotenuse, therefore x by r, therefore x equals to r times cos theta. And as we know the Cartesian representation of a complex number, that is z equals to x plus iy. But अब polar representation में x r और theta रहता है, अपने को पता ही है. polar representation के जो variables रहते हैं वो क्या रहते हैं, r और theta. अब ये जो Cartesian representation है इसको हम r और theta में ले जा रहे हैं. So that's why put x equals to r cos theta and y equals to r sin theta in this equation. तो ये मिला. यहाँ से अब देखिए r कॉमन निकला तो cos theta plus i sin theta और cos theta plus i sin theta is nothing but e power i theta and z equals to r e power i theta where theta is the argument and r is nothing but the magnitude. अब देखिए r is nothing but what, magnitude of a complex number. Magnitude of complex number according to the Cartesian root of z, that is nothing but under root of x square plus y square. अब जो भी x और y की हमने वैल्यू पुट की थी ऊपर इक्वेशन में वो यहाँ पर भी पुट करना है.
तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, फिर ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन 1, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज नथिंग बट आर, दैट्स व्हाई द मैग्नीट्यूड इज आर एंड द आर्गुमेंट इज थीटा। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इजी था। तो देखिए और एक बात देख लेंगे हम, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम आया था ना जब हम कॉम्प्लेक्स यानी कि रूट्स निकाल रहे तो वहां पे फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हो गया, फिर उसके बाद में रिप्रेजेंट कैसे करने का, ये हो गया हमारा कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में हमने कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन डीपली देख लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैग्नीट्यूड और जो भी आर्गुमेंट है यानी एंगल का ओरिएंटेशन वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पोलर रिप्रेजेंटेशन जो भी उसके वेरिएबल्स आर ऑफ थीटा रहते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।